Good morning to all of you. In the last video of class 12 business studies, we completed our 8th chapter, that is controlling, as well as we completed our part A of business studies. In part A of business studies, we discussed total 8 chapters. In the first chapter, we discussed the basic introduction of management, concept of management, features of management, and basic information related to the management, that is nature and significance of the management. In the chapter number 2, we discussed the principle of management given by Henry Fayol and F.W. Taylor. In this chapter, we discussed 14 principle of management given by F.W. Taylor, which is given by Henry Fayol, and scientific principle for management and scientific techniques which are given by F.W. Taylor. In the chapter number 3, we discussed concept of business environment, dimension of business environment, that is technological environment, social environment, economical environment, social and political environment, legal environment, and the effect of new economic policy 1991 and effect of demonetization in our economy. Apart from this, from the chapter number 4 to chapter number 8, we discussed the 5 function of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. In the chapter number 4, we discussed the first function of the management, that is planning. What is planning? Importance of the planning process, different types of plans, standing plan and single use plan, and various other things. In the chapter number 5th, we discussed organizing process, relationship between authority, responsibility, and accountability, centralization versus decentralization, when we choose a centralization and when we choose a decentralization of authority. This chapter helps to decide to take a decision for a particular problem. In the chapter number 6, that is staffing, we discussed what is staffing, what is the role of human resource management, and the basic 3 elements of staffing, that is recruitment, selection, and training and development. In the recruitment, we discussed the recruitment process, sources of recruitment, that is internal and external, and in the second element of staffing, that is selection. In this topic, we discussed the various selection tests, the selection process, and the third element of staffing, that is training and development. We discussed the training process, the different kinds of training programs, that is on the job and off the job training programs. In the chapter number 7, we discussed the fourth function of management, that is directing. Under this chapter, we discussed what is directing, what is the significance of directing. There are basically 4 elements of directing process, that is leadership, supervision, motivation, and communication. What is the role of supervisor, and
what are the advantage of the supervision, we can easily understand in this chapter. The second important element of directing, that is leadership. In this topic we discuss the different styles of leadership, that is autocratic, democratic and free reign. Which kind of leadership style implement in which kind of situation, this topic helps us. As well as we discuss the third element of directing, that is motivation, because motivation is an important part for any organization. And in this topic we discuss the difference between motivator and motives, and monetary and non-monetary incentive given by the organization to its employee to motivate them. In the motivation elements, we also discuss the famous theory given by Abraham Maslow, that is the need hierarchy theory of motivation. This theory helps us to decide which kind of incentive will be provided to the employees to motivate them. In this theory, the whole needs will be divided into 5 categories, that is basic physiological needs, safety and security needs, social needs, esteem needs and self-actualization needs. And the fourth element of directing, we discussed communication. What is communication process? What are the elements of the communication process? And what are the whole process of communication process? As well as we discussed the barriers to effective communication. Such barrier can be classified into 4 categories: semantic barrier, psychological barrier, personal barrier and organizational barrier. And how we will remove such kind of barriers by the organization, this chapter helps to receive some kind of suggestion which helps us to create an effective communication. In the last chapter of the part A, that is controlling, we discuss the concept of controlling. Controlling is a backward as well as a forward looking function and its relation with the planning process. In this chapter we discuss what are the benefits of the controlling as well as the whole controlling process. In the controlling process we understand the 2 important theory related to the controlling process, that is the critical point control and management by exception. Critical point control focus on the key result areas, and the management by exception focus on the major deviation, and it states that we could not focus on the minor deviation because we cannot control everything in the organization. So after completing the A chapter of part A, we will move to the some of the important case studies related to these chapters. After discussing these case studies related to the part A, thereafter we will move to the part B of business studies. So we move to the some of the important case studies in today's video, which are as follows. The first case study is related to the chapter number 5, that is organizing. So let's discuss it. Sahira works as a corporate wedding coordinator in an wedding management company.
she has been made an overall official in charge for organizing a jewelry exhibition for one of the clients of the company. For ensuring that the exhibition take place successfully, she identifies the various activity involved and divides the whole work into the various task groups like marketing committee, decoration committee and reception committee. In order to facilitate coordination within the and among committees, she appoints a supervisor of each group. Each member in a group is asked to their respective supervisors and all supervisor are expected to work as per the Sahira's order. सो साहिरा जो है एक कॉर्पोरेट वेडिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती हैं एक वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी में। उन्हें एक ज्वेलरी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें एक ऑफिशियल इंचार्ज बनाया गया। एग्जीबिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने सबसे पहले कई सारे एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया। उन सारे एक्टिविटीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिवाइड किया गया, जैसे मार्केटिंग कमेटी हो, डेकोरेशन कमेटी है या रिसेप्शन कमेटी है। और इन सारे कमेटी के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए उन्हें हर ग्रुप में एक सुपरवाइज़र भी अपॉइंट किया और ग्रुप का हर मेंबर जो है वो अपने रिस्पेक्टिव सुपरवाइज़र से इंफॉर्मेशन ले सकता है और सारे सुपरवाइज़र जो है वो साहिरा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। इन कॉन्टेक्स्ट टू द अबव केस, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिंग परफॉर्म बाय साहिरा। जैसे कि मैंने वीडियो ये केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दिया था कि दिस केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग, बट एग्जामिनेशन में देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर कि दिस केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू विच चैप्टर। सो ये पूरा केस स्टडी पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आता है, क्या ये प्लानिंग से रिलेटेड है? यहाँ देखिए पहले ही एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, ऑर्गेनाइजिंग अ ज्वेलरी एग्जीबिशन फॉर वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ द कंपनी। सो उन्हें एक ऑब्जेक्टिव मिल चुका है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में कई सारे स्टेप्स होते हैं, आपने सुना होगा, आइडेंटिफाई द वर्क, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये सारे फंक्शन है। सो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद प्लानिंग प्रोसेस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता, ना कि आपको डायरेक्टिंग का दिखता है, ना इसमें स्टाफिंग हो रहा है, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। सो द केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 5th, that is organizing. The second question is describe briefly the various steps involved in the performance of the function of management as identified in the part 1 of the question. तो हमने ऑर्गेनाइजिंग को सेलेक्ट किया है क्योंकि बिकॉज ऑफ सब कुछ समझने के बाद वी कॉन्क्लूड कि दिस केस स्टडी इज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, रिलेटेड टू द सेकेंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो उन सारे स्टेप्स को हम लोग पहले रिवाइज करेंगे कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, नंबर 3 असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, नंबर 4 इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो इन सारे 4 फंक्शन को हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो द फर्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन एंड division of work. The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work has to be done in the according the previously determined plans. Work is divided into the management tasks so that this duplication of can be avoided and workload can be shared among employees. तो पहले यहाँ पे मैंने सारा काम पढ़ने के बाद देखिए इसमें सबसे पहले क्या डिवाइड किया गया है, देखिए लिखा हुआ है, सी आइडेंटिफाइज द वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व एंड डिवाइड द होल वर्क इनटू द टास्क। सो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उस काम को डिवाइड किया। सो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट फंक्शन को इंडिफाइड कर रहा है। सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, वंस वर्क वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी देन दिस एक्टिविटी विच आर सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो उसने सारे काम को देखा
मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी एंड रिसेप्शन कमेटी में डिवाइड किया। मार्केटिंग कमेटी का काम होगा कि वो मार्केट से अच्छी अच्छी ज्वेलरीज़ को अरेंज करे। डेकोरेशन कमेटी का होगा कि जहाँ पे ये एग्जीबिशन लगाया जाएगा वहाँ डेकोरेशन की अच्छी प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों। एंड रिसेप्शन मीन्स जहाँ से हम अपने सारे व्यूअर्स को, गेट्स को इनवाइट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरीज़ को परचेस करें। तो उन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन भी किया है। देयर आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और हर डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर ड्यूटीज़ दी गई है। वंस द डिपार्टमेंट है क्रिएटेड, ईच डिपार्टमेंट प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड डिपार्टमेंट हेड। और इसमें आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक सुपरवाइज़र भी इस्टेब्लिश किया गया है। अब वो सुपरवाइज़र जो है वो अपने ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है तो सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एंड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसा इस केस स्टडी में लिखा हुआ है। एज वेल एज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इट इज़ वेरी क्लियर इन द लास्ट लाइन ऑफ द case study, it is clearly mentioned all the supervisor are expected to work as per the Sahira's order। और सारे सुपरवाइजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने जो सुपीरियर हैं, अपने जो बॉस हैं साहिरा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो इट इज़ अ फोर्थ स्टेप ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडीज़। The next case study, a company's manufacturing washing machine. There is a well-defined system, jobs with a clear and definite authority, responsibility and accountability in the company. But people are not allowed to interact beyond their official defined roles. As a result, the company is not able to adapt to the changing business environment. The workforce is also not motivated due to the lack of social interaction. The company is facing problem of procedural delays and inadequate recognition of creative talents. So एक मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन की कंपनी है जो वॉशिंग मशीन को मैन्युफैक्चर करती है। वहाँ पे काम करने के लिए वेल डिफाइंड सिस्टम है जॉब का, जिसमें अथॉरिटी क्लियर है, डिफाइन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर है और डिफाइंड है। लेकिन वहाँ जो पीपल्स वर्क कर रहे हैं उनको एक दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की इजाज़त है, बट ऑफिशियल रोल तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा है ना, आर नॉट टू अलाउड टू इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल। मतलब वो सिर्फ एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफिशियल रोल्स तक। इनऑफिशियली वो एक दूसरे से टॉकिंग नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट द कंपनी इज़ नॉट एबल टू अडेप्ट द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि जो बिज़नेस में चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। द वर्कफोर्स इज़ ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड ड्यू टू द लैक ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, क्योंकि उनकी सोशल नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। और इसके कारण कई काम में डिले हो रहा है, और जो हमारे क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, जो न्यू टैलेंट्स हैं, उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है। सो ये पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये पूरा जो केस स्टडी है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए इस चैप्टर में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है, बट यहाँ पर ऑफिशियल रूल से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की बात नहीं हुई है। यानी हम सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंसान के बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू फुलफ़िल द सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की कुछ सोशल नीड्स होती हैं, इसलिए वो किसी काम को करने में बोर हो जाते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को ये अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वे फॉर्मल इंट्रैक्शन के साथ साथ इनफॉर्मल इंट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यही था, सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस बाय इट।
तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन इट मस्ट अडॉप्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एनी टू बेनिफिट्स इट विल डेराइव फ्रॉम योर सजेशन, यानी अगर आपने सजेशन दिया तो मैंने सजेशन क्या दिया, या आप भी रहते तो आप भी यही सजेशन देते कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कंपैरेटिवली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी तवज्जो देना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सो पहली बेनिफिट्स तो ये होगी कि इनकी जो सोशल नीड्स हैं, बिलोंगिंगनेस है, वो फुलफ़िल होगी, यानी उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, वो तो फुलफ़िल हो ही रहा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी अगर कंपनी प्रोवाइड करिए तो वो भी फुलफ़िल हो रहा है। बट अगर वी विल मूव टू द थर्ड नीड्स, दैट इज सोशल नीड्स, तो वो नहीं फुलफ़िल हो रहा है। तो ड्यू टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी डैट कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड भी फुलफ़िल होगी। सो एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपने देखा कि क्रिएटिविटी रुक जा रही है, इनोवेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन necessary environment for creativity and innovation, and it provides a sense of belongingness and gives due to the respect to social and psychological needs. Okay, let's move to the next case studies। और ये केस स्टडी आपको थोड़ा सा फुल पेज पे दिख रही होगी, तो हम इसको लाइन वाइज लाइन आप पढ़िएगा, जूम करने पे हो सकता है क्वालिटी विल बी इफेक्टेड। So the case problem number 1 of the next chapter, that is staffing. Okay, a company X Limited is setting up a new plant in India for manufacturing auto components. India has a highly competitive and cost effective production base in this sector. Many reputed car manufacturers source their auto components from here. X Limited is planning to capture about 40% of the market share in India and also expect to the tune of at least 5 million in about 2 years of its plant operation. To achieve these targets, it requires highly trained and motivated workforce. You have retained by the company to advise in this matter. Right giving answer, keep in mind the sector our company is operating. देखिए इस क्वेश्चन में इट इज़ क्लियरली कि मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स के न्यू प्लांट की सेटिंग की जा रही है कंपनी की तरफ से, और इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है, और इस सेक्टर में कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन बेस की आवश्यकता भी है। बहुत सारी रेपुटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो ऑटो कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ से मैन्युफैक्चर करती है। एक्स लिमिटेड ये प्लानिंग कर रही है कि वो 40% मार्केट शेयर में इस्टेब्लिश कर लें और एटलीस्ट 5 मिलियन का एक्सपोर्ट करें इंडिया के बाहर आने वाले 2 सालों में। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स लिमिटेड को एक हाईली ट्रेन और मोटिवेटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। आपको ये बताना है कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को स्टाफ करे ताकि उसके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छे ट्रेन एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स आए। सो ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही टफ लग रहा है, बट इस क्वेश्चन के आंसर बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको केस स्टडी में ऑब्जेक्टिव बता दिया है, ऑर्गेनाइजिंग बता चुका है, आपको स्टाफिंग पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को ये बोला गया है टू अचीव दिस टारगेट इट रिक्वायर्स अ हाईली ट्रेन एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। सो आपको कंपनी को एडवाइस करना है और इन सारी चीज़ों को, इन सेक्टर्स को ध्यान में रखना है। सो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग द कंपनी शुड फॉलो। जब भी क्वेश्चन में वर्ड आता है आउटलाइन द प्रोसेस, और किसी का भी प्रोसेस हो, चाहे प्लानिंग का हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का हो, चाहे स्टाफिंग का हो, सो आपको जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखे आउटलाइन द प्रोसेस, तो आप अपने मन में एकदम रख लीजिए कि वहाँ पे आप उसका एक ग्राफ बना के प्रेजेंट ज़रूर करेंगे, एक टेबुलेशन प्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ज़रूर करेंगे, जैसा इस सॉल्यूशन में किया भी हुआ है कि एक्स लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। द प्राइम कंसर्न ऑफ द कंपनी इज़ टू हायर द मैन पावर हु आर
highly trained and motivated. In order to achieve the targets, the company should follow the staffing process in this matter. यानी इसके लिए कंपनी को स्टाफिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस requires 8 steps. The first one is estimating manpower requirements, second recruitment, third selection, fourth placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, compensation of employees. तो ये सारे steps को उसे line वाइज line follow करना पड़ेगा. The second one, which source of recruitment should the company rely upon? गिव रीज़न फॉर योर रिकमेंडेशन. अब आप खुद सोचिए, कंपनी को न्यू टैलेंट चाहिए, मोटिवेटेड पर्सन चाहिए. कंपनी को कहाँ से मिल सकता है? इंटरनल एम्प्लॉयज़ से मिल पाता नहीं. उसे उसका ऑब्जेक्टिव काफ़ी बड़ा है, उसने एक नई यूनिट डेवलप करना है. सो इस केस में नए यूनिट को जब भी हम डेवलप करते हैं तो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं होते हैं. सो द कंपनी इस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिट इन इंडिया, दे शुड रिले ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ recruitment, and they should adopt these sources and through employment exchange, placement agencies, labor contracted, they will get good stuff in the company. बहुत सारे resources you can understand, and you can also study in the previous few videos कि there are various kind of sources available for the external recruitment. So the next question is आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ. ओके, इससे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन और लिखा है. दिस रिकमेंडेशन इज फ्रूटफुल बिकॉज थ्रू दिस सोर्स ऑफ द कंपनी विल हैव अ वाइड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट. दे कैन गेट अनक्वालिफाइड पर्सनल एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस. ओके, सो अगर हम नए एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ जॉब देते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक नए जोश के साथ, एक हाईली कॉम्पिटिटिव मूड के साथ बेटर परफॉर्मेंस के लिए वर्क करते हैं. थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस केस स्टडी इज आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. अगेन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. सो अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि व्हेन अ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द आउटलाइन द प्रोसेस, तो you have a responsibility to draw a tabulation related to this process. So you can you know about it कि what are the process of selection process, that is the various steps included in it. That first one is preliminary screening, second is selection test, third is interview, fourth one is selection decision, fifth one is medical examination, सिक्स वन इज़ अ जॉब ऑफर एंड लास्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, बट आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा एग्जामिनेशन में. एंड वन बाय वन यू प्रोवाइड दिस रीज़न, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन is asking about the outline the process of selection of the company should follow with reason. Okay. So the through recruitment process, organizations receive large number of application. In order to select the most suitable candidate to perform the job, selection process to be considered. Following steps are to be taken in a series. The first step, preliminary screening, has the managers to select from the among those candidates who have applied. Second step is a selection test. It is to be conducted to check the practical knowledge of the candidate, and third is interviews to be taken of those candidates who qualify the test. A panel of expert is called to identify the best among hundreds. यानी कई सारे लोग होंगे. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से हम क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसमें से हम एलिजिबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे. सिलेक्शन टेस्ट की हेल्प से हम लोग उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करेंगे, और इंटरव्यू की हेल्प से हम उनको उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एज वेल एज उनका कंफर्ट लेवल भी चेक किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जा सकता है. फोर्थ step is selection decision. The candidate who pass the test and the interview are included in the selection list. Critically examine that they are passed or not.
Fifth step is the examination of their medical fitness, whether they are physically and mentally fit or not. उसमें देखा जाता है कि फिजिकली मेंटली फिट है कि नहीं है. सिक्स स्टेप में उन्हें जॉब के लिए ऑफ़र किया जाता है, उन्हें सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. व्हेन द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट of employment, the employer and candidate exchange the certain document as the final process of selection. And the fourth question related to this case study, okay, the fourth question is, which method of training and development should company initiative? Explain giving reason. So you know very well that there are basically two training methods, that is on the job training method and off the job training method. And this question is asking in this question because कंपनी को एक अच्छी एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ भी चाहिए. तो इस क्वेश्चन में ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकता था और मोटिवेशन के बारे में पूछ सकता था, बट मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बेसिकली पूछा जा सकता है. सो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमें किस तरह के मेथड को प्रोवाइड करना चाहिए. तो because you know the company can use on the job and off the job training method according to the nature of work. Where the work is simple, on the job training method can be used, and where the work is complex, there is a use of sophisticated machinery and technology of the job training can be used. यानी कि अगर कंपनी के पास हाई लेवल की मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड प्रोवाइड करना चाहिए. और अगर वर्क स्ट्रक्चर थोड़ा लिबरल है तो वहाँ पे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड दे सकते हैं. उसके बेनिफिट्स आपके सामने हैं, वही उसके रीज़न भी हैं. ऑन द जॉब मेथड्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल मेथड है. ट्रेनिंग कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द रियल एंड एक्चुअल इन केस ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी वो काम करने के साथ साथ ट्रेनिंग लेने के साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं. सेपरेट अरेंजमेंट नीड नॉट टू बी डन, दैट इज़ कोचिंग मेथड, यानी उसके लिए सेपरेट अरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. कोई ज़रूरत तो नहीं होती ना, आप काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट फ्रॉम बिंग डैमेज्ड. और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से सबसे पहला फ़ायदा होता है कि रिस्क नहीं होता. ये मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था, ना तो मशीन ख़राब होने का रिस्क होता है, ना तो किसी एम्प्लॉयज़ के एक्सीडेंट का रिस्क होता है. एंड सेकेंड, कॉन्फ्रेंस हेल्प्स टू डेवलप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज. यानी जब उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी न्यू मशीनरी के बारे में, तो जनरली वो उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ सेटिस्फाइड नहीं होते. सो विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ्रेंस मेथड, कोचिंग मेथड से हम उनका पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप करते हैं, ताकि उनके मन में जो रेजिस्टेंस का फीलिंग है वो कम हो. सो which helps to the, so basically on the job training and off the job method यहाँ पे दोनों प्रोवाइड किया सकता है. बिकॉज क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियरली कि वो कैसा उसका नेचर है, वो किस तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहती है या उसकी सिचुएशंस क्या है, ये क्लियरली नहीं है केस स्टडीज़ में. अगर केस स्टडीज़ ऐसी होती जहाँ पे क्लियरली सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता तो हम किसी एक ट्रेनिंग मेथड को सजेस्ट करते, बट यहाँ पे दोनों मेथड प्रोवाइड किया सकता है और दोनों का अलग अलग सिचुएशन है. सो हम लोगों ने आज कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस किया. आई होप दिस केस स्टडी हेल्प्स टू द अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू different function of management. Apart from this, if you have any kind of doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.